हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो पिछले वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ किए थे। 30 एमसीक्यूज़ हमने इम्यूनोलॉजी के यूनिट से किए थे और आज हम दूसरे पार्ट में 50 एमसीक्यूज़ लाए हैं इम्यूनोलॉजी के यूनिट से। तो आज हम इसके 50 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which of the following immunoglobulin makes the largest percentage in breast milk? Option A IgM, option B IgD, option C IgG, option D IgA। और जो इसका सही आंसर है वो है IgA। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में मैंने इसे ऐड किया था। Transplanted graft may be rejected due to A. Cell-mediated immune response, B. Humoral immune response, C. Innate immune response, D. Passive immune response। और जिसका आंसर है वो है cell-mediated immune response। Antibodies are prostaglandins, steroids, lipoproteins, glycoproteins। Correct answer is glycoproteins। Interferons are A. Antibiotic proteins, B. Antiviral proteins, C. Antigen proteins, D. All of the above। The correct answer is antiviral proteins। Question number 5. Globulins of the blood plasma are responsible for option A. Defense mechanisms, B. Blood clotting, C. Oxygen transport, D. Osmotic balance। The correct answer is defense mechanism। Which of the following antibodies is predominantly present in tears, saliva and mucus? इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर है IgA। The class of antibodies which can cross placenta is option A IgD, IgA, IgG, IgM। इसका आंसर है सी पार्ट, सी ऑप्शन IgG, जो कि जब फीटस मदर के वोम में होता है तब जो पहली एंटीबॉडी जो मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है वो IgG होती है। ये ओनली IgG सॉरी ये ओनली एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन A. Fab regions of an antibody, B. Fc regions of an antibody, C. Only in the light chain, option D. Only in the heavy chain। और इसका आंसर है जो है FAB region of an antibody। FAB stands for fragment antigen binding। Fragment antigen binding। Type 1 hypersensitivity involves option A IgD, option B IgM, option C IgE, ऑप्शन डी IgG। इसका आंसर है वो है IgG क्योंकि एलर्जी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। हाइपर सेंसिटिविटी को दूसरा नाम भी कहते हैं एलर्जी रिएक्शंस भी। Major histocompatibility complex is a tight cluster of linked option A carbohydrates, option B proteins, option C genes, option D lipid molecules। और जो इसका सही आंसर है वो है genes। What is the name of MSC in humans? Humans में MSC जो मॉलिक्यूल है उसे क्या नाम कहते हैं? HLA, B H2, C adjuvants, D haplotype। इसका जो ना HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। Which of the following polypeptide is important for the transmission of MHC1 on the cell membrane? A. Interferons, beta 2 microglobulin, C लिफोकाइनस, D इंटरल्यूकिनस। और इसका जो सही आंसर है वो है B बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन।
Which of these are non-professional antigen presenting cells? A. Macrophages, B. Dendritic cells, C. Fibroblasts, D. बी लिम्फोसाइट्स। और जो इसका सही आंसर है वो है फिब्रियोब्लास्ट्स। और जो ये तीन बाकी तीन है, ए मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, और ये है ये प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। फिब्रियोब्लास्ट्स, गैलियल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स जो होती है, एपिथेलियल सेल्स, वो नॉन प्रोफेशनल होती हैं। Name the cell which receives antigen presented by MSC molecule. NK cells, B cells, T cells, macrophages। और जो इसका सही आंसर है वो है T cells। Name the class of MSC which is recognized by CD4 TH cells। उस MSC मॉलिक्यूल का नाम बताना है जो CD4 TH cells रिकग्नाइज करता है। जो CD4 सेल्स जिस मॉलिक्यूल को, MSC मॉलिक्यूल को रिकग्नाइज करते हैं, वो उसका नाम बताना है। MSC कैनॉट रिकग्नाइज टी सेल, MSC थर्ड, MSC 1, MSC 2। और जो इसका सही आंसर है वो है MSC 2। विच MSC मॉलिक्यूल रिकग्नाइज CD8 टी सेल्स? ऑप्शन MSC 1, MSC सेकंड, MSC थर्ड, HLA-C। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है MSC 1। Name the part of processed antigen that binds to the MSC molecule and recognized by T cells. Immunoglobulin, एग्रीटोप, इपीटोप, चैपिरॉन। और जो इसका सही आंसर है वो है एग्रीटोप। Which of the following statement is incorrect about super antigens? यहाँ पे incorrect, इनमें से कौन सा incorrect है सुपर एंटीजन्स में? ए वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन्स, बी एंडोजीनस बाय नेचर, सी यूनिक बाइंडिंग एबिलिटी, डी एक्टिवेट अ लार्ज नंबर ऑफ टी सेल्स। और जो इसका आंसर है वो है एंडोजीनस बाय नेचर, क्योंकि ये बोथ एंडोजीनस और एक्सोजीनस भी होते हैं। ये बोथ एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस होते हैं ये सुपर एंटीजन, इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत है। द एंटीजेनिक डिटरमिनेंट इज कॉल्ड, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट को क्या कहते हैं? इपीटोप, इपीटोम, माइक्रोबियोम, मेटाजीनोम। और इसका सही आंसर है इपीटोप। जो एंटीजन पे प्रेजेंट होता है उसे इपीटोप कहते हैं, और जो एंटीबॉडी पे प्रेजेंट उसे पैराटोप कहते हैं। V segment of chromosome second encodes for the V region of antibody. V stands for variable region of antibody. Segment A segment, C segment, V segment, D segment। और जो करेक्ट आंसर है वो है J segment। Cyclosporin A is a drug that A suppresses the immune system, B increases body temperature, C increase the production of antibodies, D decreases body temperature। जो इसका सही आंसर है वो suppresses the immune system। जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ह्यूमन में, तब जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए ज़रूरी होता है वो है साइक्लोस्पोरिन ए। बहुत और भी ड्रग्स है, लेकिन जो मेनली यूज़ किया जाता है वो है साइक्लोस्पोरिन ए, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तभी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाएगा, वरना ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि MSC मॉलिक्यूल वहाँ प्रेजेंट है। वो इसको फॉरेन पार्ट होगा वो इसे वहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट होने नहीं देगा। Fragments of antigens fragments of antigens are held at the surface of antigen presenting cells. A histones, B antibodies, C major histocompatibility complex, epitope। इसका सही आंसर है वो है MSC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV? HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वेसल्स, ह्यूमन हेल्थ इंटर एक्सचेंज वायरस, डी हेल्थ इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और जो इसका सही आंसर वो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इससे एड्स होती है। जो एक इम्यूनोडिफिशियंसी
डिजीज़ हैं। विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय HIV, HIV से कौन सी सेल्स डिस्ट्रॉय होती है? ए हेल्पर सेल्स, के हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, वाई हेल्पर सेल्स, और जो इसका सही आंसर है वो है टी हेल्पर सेल्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स की फुल फॉर्म क्या है? ए एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इस एक्सेप्टेड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्सेप्टेड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। जो इसका सही आंसर है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV से होता है। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन HIV इन्फेक्शन? HIV इन्फेक्शन में कौन सी कितनी स्टेजेस होती है? 1, 2, 3 और 4। इसका जो आंसर है वो है 3। इसके लिए मैं आपको एड्स के लिए एक अलग सा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये सारी बातें समझा दूंगा। When did the World Health Organization first propose a deficiency for AIDS? एड्स की जो पहली डिफिशियंसी जो है वो WHO ने कब दी थी? 1956, 1966, 1976, 1986। जो इसका सही आंसर है वो है 1986 में पहली डिफिशियंसी WHO ने एड्स के लिए दी थी। इन विच कंट्री एड्स वाज फर्स्ट क्लिनिकली ऑब्जर्व? क्लिनिकली ट्रायल में जब क्लिनिकली में पहली बार जो एड्स है वो कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था? इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्वे, पाकिस्तान, और जो इसका सही आंसर है वो है द यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो आप सभी को पता ही होगा। द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इन द कॉम्प्लीमेंट पाथवे कंसिस्ट ऑफ। जो मैक होता है, जो एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होती है कॉम्प्लीमेंट पाथवे में, उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं? C3b, C3b, बी ऑप्शन, C5b, 6, 7, 8, 9, थर्ड कॉलिसिन्स, DOH, और जो इसका सही आंसर है वो है बी, C5b, 6, 7, 8, 9। The initial complement component that is bound by complement fixing antibodies is A C1q, C1s, C3b, C5a। जो इसका सही आंसर है वो है D, C5a। वन प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज टू। कॉम्प्लीमेंट का एक प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? ए बाइंड्स एंटीबॉडीज अटैच्ड टू सेल सरफेसेस एंड टू लाइस दीज सेल्स, बी क्रॉस लिंक एलर्जेंस, सी इनएक्टिवेट परफॉरेंस, डी मीडिएट द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, और जो इसका सही आंसर है वो है ए बाइंड्स एंटीबॉडीज अटैच टू सेल सरफेस एंड टू लाइस दीज सेल। The classical and alternative pathways meet at complement compound। जो ये दोनों पाथवेज हैं, क्लासिकल एंड अल्टरनेटिव पाथवे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की है, वो दोनों किस पॉइंट पे मिलती है? किस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब बनता है वहाँ पे मिलती है? ए C3, बी C4, C4b, डी C5। जो इसका सही आंसर है वो है ए C3 पे वो दोनों मिल जाती हैं। Which of the following isotope antibody is potent activator of the classical complement pathway? Option A IgM, IgA, IgE, IgG, और जिसका आंसर है वो है IgM। In the classical pathway, which of the following complement complex serve as C3 convertase? क्लासिकल पाथवे में जो C3 कन्वर्टेस जो होता है वो उसका काम इन चारों में से कौन करता है? ऑप्शन ए C4a, C2a, C4b, C2b, C4b, C2b, C4a, C2b। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी C4a, C4b, C2b। Which of the following component of complementary protein enhances inflammation? एंड इन्फ्लेशन का दूसरा नाम होता है फाइलॉक्सिटन। जो मतलब ये इसका जो मतलब है वो इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ पे इन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन होती है, कहीं पे डॉलर या जलन होती है, कहीं पे स्वेल होती है, हमें अगर कहीं पे एलर्जी होती है तो वहाँ स्वेलिंग होती है, उसके लिए जो बोल रहा है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स
इनहेंस होते हैं कि नहीं। वहाँ पे सी ऑप्शन ए C3A, ऑप्शन बी C5A, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबो, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। जिसका आंसर है बोथ ऑफ द एबो। ये दोनों ए एंड बी वहाँ पे इनहेंस होती है। इन प्रोटीन्स की वहाँ पे जो इनकी जो वहाँ पे कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है वहाँ पे। Which of the following complement protein potent component, which of the following complement component facilitate opsonization and phagocytosis? इन जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से कंपोनेंट हैं जो बोथ ऑप्सनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं? ऑप्शन ए C3A, ऑप्शन बी C3B, ऑप्शन C5A, ऑप्शन 4C5B। जो इसका आंसर है वो है C3B। Complement system: A consists of 30 serum proteins. Option B serum proteins acts as biological cascade. Option C both A and B. Option D are set of antibodies. और जो इसका सही आंसर है वो है both A and B. Biological role of complement system includes: A. Cytolysis and chemotaxis. B. Opsonization. Option C. Anaphylaxis and enhances antibody production. Option D. All of these. और जो इसका सही आंसर है वो है all of these. ये इन तीनों चीज़ों को कर देता है। The autoimmune thyroid disorder with a presence of anti-TSH receptor antibody is suggestive of: A. Hashimoto's thyroiditis. B. Graves' disease. C. Good posture syndrome. D. None of the above। और जो इसका सही आंसर है वो है ग्रेविस डिजीज। ग्रेविस डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। Certain autoimmune disorders are monogenic, caused by a mutation in a single gene. The following are the monogenic autoimmune disease except: A. Autoimmune lymphoproliferative syndrome. B. Autoimmune polyadenopathy. C. Immunodysregulation polyendocrinopathy X-linked. D. Systemic lupus erythematosus। और जो इसका सही आंसर है वो है D. Systemic lupus erythematosus। The autoimmune disorders with an elevated anti-thyroglobulin antibody is: A. Hashimoto's thyroiditis. B. Graves' disease. C. Good posture syndrome. D. None of the above। और जो इसका आंसर वो है Hashimoto's thyroiditis। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ और जो इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो नीट के लिए आपको बहुत अहम होती है कि ये नीट में पूछी जाती है। दोनों ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी कोई क्वेश्चन आता है और इम्यूनो डिफिशिएंसी में भी क्वेश्चन आते हो, तो आप इसे गौर से याद रखिएगा। द जनरेशन ऑफ रिएक्टिव सेल्स अगेंस्ट HHV6 encoded U24 cross reaction with myelin basic protein resulting in autoimmune disease: A. Myasthenia gravis. B. Multiple sclerosis. C. Graves disease. D. Systemic lupus erythematosus। जो इसका सही आंसर है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें जो माइलिन शीथ होता है, जो है ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें जो माइलिन शीथ होता है न्यूरॉन्स में वो खुद को ही खाने लगता है, वहाँ की उसकी सेल खुद को ही मारने लगती है, तो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। The common disorders caused by a poor immune system includes: A. Epidemic disease. B. Deficiency disease. C. Autoimmune disease. D. None of the above। और जो इसका सही आंसर वो है epidemic disease। 44. Who discovered the structure of immunoglobulin by treating it with beta-mercaptoethanol? A. Nisenhoff, Edelman, Porter, Whitaker। जो इसका सही आंसर है वो है Edelman। Which of the following amino acid is found in the hinge region? इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है वो जो एंटीबॉडी है उसके हिंज रीजन में पाई जाती है? ये एक एंटीबॉडी की शेप है, जो यहाँ पे पाया जाता है, जो प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है उसे हिंज प्रोटीन कहते हैं। इसका ऑप्शन है एलानिन, एस्पार्जिन, प्रोलिन एंड सिस्टीन, फिनाइल एलानिन। जो इसका सही आंसर है वह प्रोलिन एंड सिस्टीन। Which of these in immunoglobulins is present
इन एक्सटर्नल सिक्रीशन में इनमें से कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? IgG, IgM, IgA, IgE। और जो इसका सही आंसर है IG। ये ऑलमोस्ट ऑल सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, ये IgA। नेम द हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन G। ऑप्शन ए म्यू, एप्सिलॉन, अल्फा, गामा। और जो इसका सही आंसर है वो है गामा। The bonds involved in antigen antibody reactions are: A. Weak hydrogen bonds and van der Waals forces. B. Strong covalent bonds. C. Strong disulfide bonds. Option D. All of these। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है weak hydrogen bonds and van der Waals force। Which of the following complement components facilitate opsonization and phagocytosis? C3A, C3B, C5A, C5B। और जो इसका आंसर है वो है C3B। Which MSC molecule recognizes CD8 TC cells? इनमें से कौन सा MSC molecule को CD8 T cells रिकग्नाइज करती है? A. MSC1, MSC2, MSC3, HLA-C। जो इसका आंसर है वो है MSC1। और गैस अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे लाता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और कल आपके लिए जनरल नॉलेज की वीडियोस भी लाऊंगा।